السلام علیکم ناظرین، ضلع کونسل اٹک کا بجٹ اجلاس زیر صدارت کنوینر وزیر خان کھٹک منعقد ہوا۔ یہ ہے ممبران ضلع کونسل جو آپ کو دکھا رہا ہوں جی۔ اس موقع پر محترمہ ایمان طاہر صاحبہ چیئرپرسن ضلع کونسل اٹک نے بجٹ پیش کیا ہے، وہ بھی آپ کو سنائیں گے، اور ممبران نے جو اس موقع پر سپیچ کی ہے وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ قاری عتیق الرحمان صاحب نے تلاوت کی اور نعت شریف بھی پیش کی۔ یہ ایک رپورٹ ہے، اپنے ناظرین کو سناتا ہوں جی۔
جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ڈسٹرکٹ اٹک کونسل کا بجٹ پیش ہو رہا ہے. یہ ہمارا دوسرا اجلاس ہے. پہلا اجلاس اس خوشی میں گزر گیا تھا کہ ہم بحال ہوئے. آج میڈم کا میں شکریہ آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے اتنے کم وقت میں بجٹ تیار کیا. ہماری جو مدت ہے موجودہ وقت کے مطابق اب تک 31 دسمبر ہے. 3 دسمبر کو پھر سماعت کے لیے تاریخ مقرر کی گئی ہے. آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ یہ جو مدت 5-6 مہینے سپریم کورٹ کا آرڈر بحال نہیں ہوا تھا, اس پہ عمل نہیں ہوا تھا, تو شاید ہمیں وہ 5-6 مہینے مل جائیں. بہرحال اس بجٹ میں ایک اور خوبی بھی ہے کہ میڈم نے یہ نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی کا ہے, نون کا ہے یا کس گروپ سے ہے. سب ناظرین کو یکساں طور پہ فنڈ دیے ہیں اور میرے خیال میں یہ تاریخ میں پہلا واقعہ ہوگا. میڈم جب بجٹ پیش کر رہی ہوں گی تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وقت موبائل بھی بند رکھیں اور مداخلت کم کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے, سن سکیں کہ میڈم کیا کہہ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام چیئرمین حضرات, صحافی حضرات, ڈسٹرکٹ کونسل سٹاف, السلام علیکم. سب سے پہلے تو جیسا کہ تمام چیئرمین حضرات کے علم میں ہے کہ ادارے جو ہیں وہ 2 سال کے لیے ڈیزالو کر دیے گئے, انہیں معطل کر دیا گیا اور پھر ہم سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق بحال ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام چیئرمین حضرات کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور چیف جسٹس صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا, نہ صرف ہمیں بحال کیا لیکن آئندہ جو بھی حکومتیں آئیں گی ان کے لیے یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ وہ مقامی حکومتوں کو اپنی آئینی مدت ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ ڈیزالو نہیں کر سکیں گے. جتنے بھی ہمارے یونین کونسل کے ہمارے چیئرمین حضرات ہیں اور ہمارے ممبرز ہیں, میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس طرح آپ نے اس ایوان کے ماحول کو پچھلے 2 سال جو ہے ہمارا ایوان کا ماحول رہا, یہ بھی ایک تاریخی جو ہے وہ آپ نے ایک تاریخ رقم کی ہے کہ آپس میں ہم نے اتفاق کے ساتھ اور ماحول کو بہتر رکھتے ہوئے اس ہاؤس کو ہمیشہ چلایا ہے. یہ آپ لوگوں کی مدد کے بغیر, آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا. اس کے لیے میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں. اس بجٹ میں ایسی سکیمز کو ترجیح دی گئی ہے جو مجموعی اور عوامی فلاح کا باعث ہوں گی. بجلی کے آپ سب جانتے ہیں کہ بجلی کے مسائل بہت زیادہ ہیں جن کا, اور بہت سی ایسی یونین کونسلز ہیں جو بہت پیچھے رہ گئی ہیں اور جن کا بنیادی انفراسٹرکچر جو ہے وہ بھی موجود نہیں ہے. ہمارا مقصد ضلع اٹک کی عوام کو بہتر ریلیف دینا ہے اور بالخصوص وہ تحصیلیں جو پیچھے رہ گئی ہیں, جو پسماندہ ہیں, ان کا حق بھی زیادہ بنتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی محرومیوں کو دور کیا جائے گا. میں آپ سب کی توجہ ڈسٹرکٹ کونسل اٹک کے بقیہ عرصے کے بجٹ برائے مالی سال 2021-2022 کی جانب مبذول کرنا چاہتی ہوں, چونکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے بجٹ رواں مالی سال 2021-2022 بنانے کے لیے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے, جس کی روشنی میں رواں مالی سال کا بجٹ ایوان کے سامنے پیش کرتی ہوں. رواں مالی سال 2021-2022 کے باقی عرصہ میں ڈسٹرکٹ کونسل اٹک کو آئندہ 7 ماہ میں پنجاب فائنانس کمیشن ایوارڈ کے تحت 18 کروڑ 22 لاکھ روپے فنڈ متوقع ہیں, جن میں پراپرٹی ٹیکس, کرایہ, لائسنس فیس, نقشہ جات کی منظوری اور مشتری ٹیکس وغیرہ کی مد میں وصولیوں کا ہدف 3 کروڑ 10 لاکھ, جبکہ ڈسٹرکٹ کونسل اور دیگر متفرق مدات میں
1,48,68,00,000 रुपए आमदन मुतवक्का है। इस तरह वसूलियों का कुल हदफ 1,70,38,00,000 रुपए मुकर्रर किया गया है। मौजूदा बजट में अखराजात की तफसील कुछ यूँ है। तनख्वाहों की मद में 8 करोड़, रिटायर्ड मुलाजमीन और पेंशन वगैरह की मद में 6 करोड़, जबकि गैर तरक्याती अखराजात की मद में 4 करोड़ रखे गए हैं, जिसकी तफसील आप सबके सामने बजट दस्तावेज़ की सूरत में पेश की जा चुकी है। इस तरह गैर तरक्याती अखराजात का कुल तखमीना रवा माली साल 2021-2022 बकिया अरसा के लिए 12 करोड़ 50 लाख रुपए लगाया गया है। इस ऐवान में आप सब मुअज़्ज़िज़ीन मेंबरान के साथ किए गए वादे के ऐन मुताबिक रवां बजट में तरक्याती अखराजात के फ़ंड तमाम मेंबरान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मुसावी तौर पर तकसीम किए जाएंगे, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, जिसके मुताबिक पूरे बजट में हर यूनियन काउंसिल को 40-40 लाख रुपए, स्पेशल मेंबरान को 10-10 लाख रुपए और बिजली की मद में 40 करोड़ रुपए और खस्ता खाल रोड, वाटर सप्लाई स्कीम्स और देहात में कूड़े क्रिकेट के ढेर उठवाने के लिए बकिया रकम मुख्तस की जाती है। इसके अलावा मुअज़्ज़िज़ ऐवान की वसादत से वज़ीर आला पंजाब से भी दरख्वास्त करते हैं हम कि वो ज़िला अटक की पसमानदगी को देखते हुए ज़िला काउंसिल अटक को खसूसी तरक्याती ग्रांट्स जो हैं वो उसका इजरा करें। इस बजट के बराए इस तरह बजट बराए माली साल 2021-2022 मंजूरी के लिए आपके सामने पेश किया जाता है। अल्लाह ताला हम सबको सच्चे दिल से और खुलूस नीयत से ज़िला अटक की तामीर और तरक्की के लिए बेहतरीन सलाहियतें और अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाने की तौफीक अता करे और हम तमाम चेयरमैन हजरात और मैं हम सब मिल के ज़िला अटक के गरीब आवाम को रिलीफ दे सकें, उनकी महरूमियों को दूर कर सकें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया ना अदा करने के एक अच्छी है ना कोशिश की थी जो पूरे पंजाब में कोई 2 जगह है। मेजर साहब बोले ना मैं सलाम करना है चेयरपर्सन साहबा का और तमाम हाल में मौजूद अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबरान हैं, आज इस मौके पे ये गुजारिश करूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि जो शब खून हमारे इदारों के ऊपर किया गया था, हुकूमत वक्त ने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीम फैसला देते हुए हमें बहाल किया और रूल ऑफ लॉ की सुपरमेसी हुई। इसके साथ साथ ये जरूर कहूंगा आज के मौके पे, क्या पता कोई एक आध इजलास और हो, क्योंकि ये आखिरी महीना है हमारा। हमें इलेक्ट किया था, अवाम ने इलेक्ट किया था 5 साल के लिए, तो हमें बदकिस्मती के साथ 2.5 साल खिदमत का मौका दिया गया, बकाया हमसे छीन लिया गया। मगर 2.5 साल मैं चेयरपर्सन साहबा की इस बात के ऊपर बहुत तारीफ करूंगा कि बहुत अच्छे अंदाज में हाउस को चलाया, बहुत आला कारकर्दगी दिखाई, क्योंकि जब भी हम आए मुस्लिम लीग नून वाले तो इन्होंने उसमें क्लासिफिकेशन नहीं की। आज के बजट में भी इन्होंने साबित किया कि चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हो, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो मेजर ग्रुप हो, 40-40 लाख रुपए आपने दिए। मैं आपका तहे दिल से मजबूर हूं। आपने और हमने मिलकर इस अवाम की खिदमत करनी है और इसी का हलफ हमने उठाया हुआ था। तो आज आपने ये साबित कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने कोई क्लासिफिकेशन किसी में नहीं की। और हो सके तो मैं ये कहूंगा कि पीटीआई की हुकूमत जो कि अब गिरने वाली है, जिसके कोई हालात नहीं है, जिसके बिल्कुल भी कोई हालात नहीं है, लोग मुतनफर हो चुके हैं और इंशाअल्लाह हमारा वक्त तो आज खत्म हो जाएगा, मगर आइंदा पीटीआई की हुकूमत कभी नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि मेजर ताहिर सादिक ने खिदमत की ज़िला अटक की और उसके अवार्ड में आज मैं मुस्लिम लीग नून का होते हुए भी ये बयान करते हुए फख्र महसूस करता हूं कि मेजर ताहिर ने ज़िला अटक की खिदमत की है, बरकला की है। कि हमारा जो ये टेन्योर गुजरा
बहुत अच्छा गुजरा, हमारी दोस्तियां बहुत आगे तक गई और हमारे मामलात और डिस्कशन, और कभी भी हाउस में हमारा कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई रोला नहीं हुआ। बहुत अच्छे तरीके से आपने चलाया है। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। मेरे तमाम भाइयों को हम फिर भी मिलते रहे, इस सियासत में आवाम की खिदमत करते रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। आज की जो तकरीब है, हमारी चेयरपर्सन मैडम साहब ने जो अभी बजट तकरीर पेश की है, माशाल्लाह हमें भी खुशी हुई है कि आज हम 2021 और 2022 का बजट पेश करते हुए सब दोस्त और बड़े इत्तेफाक से हम इस बजट तकरीर को हमने सुना। मैं स्पेशली जो नून लीग के जो हमारे चेयरमैन हैं, कौंसलर आजाद हैं, जो भी हैं, मीडिया, जो उसका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी हमारे जो चेयरमैन साहब ने तकरीर की, वेल डन। हमने इस तरह एक साथ रहना है, हमने पूरा अटक का सोचना है, हमने किसी पार्टी का नहीं सोचना है। आज मैं किसी पार्टी में हूं, कल किसी और पार्टी में होगा, कोई किसी पार्टी में हो, किसी और पार्टी में होगा, लेकिन चूंकि हम एक अटक के बाशिंदे हैं, अटक के रहने वाले हैं, ठीक है। और अटक की सरजमीन जो है वो इंशाल्लाह जो 36 जिले हैं, उसमें मेरा ख्याल के मुताबिक जो मैं समझता हूं, अटक एक ऐसा इलाका है, बड़ा जरखेज इलाका है। इसने बड़े बड़े लीडर पैदा किए हैं, बड़े बड़े जर्नल पैदा किए हैं, बड़े बड़े दना लोग पैदा किए हैं, और बड़े अच्छे सियासी लोग भी पैदा किए हैं। वो चाहे नून से हैं, चाहे वो पीटीआई से है, या मेजर ग्रुप के लोग हैं। ये सब हमारे लिए वैसे फख्र है, वैसे एहतराम है। हमने इसी तरह जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह हमने इस रवायात को आगे लेके चलना है। और यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि मेजर साहब एक बड़ी शख्सियत है, इसमें कोई शक नहीं। वो सब लोगों को पता है, वो सब लोग उसको मानते हैं, पूरा पंजाब मानता है मेजर साहब को। इसलिए ये अगर किसी बंदे में कोई खूबियां हो तो उसकी तारीफ कर देनी चाहिए, ठीक है। बाकी ठीक है, मेरे भाई ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत जा रही है, अल्लाह खैर करे। अगर आपकी हुकूमत आएगी तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हो जाएंगे। काम चाहिए हमें, हम ठीक है सर। तो दोबारा खान वजीर साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप माशाल्लाह अपनी ये 6 महीने आप मुद्दत पूरी कर लें, ताकि दोबारा आपका मसला हल हो जाए। रोज आपने झगड़ा बनाया होता है, मुझे ये बनाओ, मुझे ये बनाओ, तो आपको सब ने, नून लीग हम सब लोगों ने आपको बना दिया भाई साहब। मोहतरम ईमान बीबी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, माशाल्लाह ये अपने अपने वाला साहब के नक्शे कदम पर चल रही है, माशाल्लाह सब लोगों के साथ लेके चलती है। मैं दोबारा अपने सब चेयरमैनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी पीटीआई का, अपनी नून लीग का, कि हमने जो वक्त अभी बाद में गुजारना है, इसी ऐसा तरीके से प्यार मोहब्बत से गुजारना है। थैंक यू, खुदा हाफिज। ताहिर साहिबा का और हाल में बैठे हुए तमाम चेयरमैन, मेंबरान हजरात का और मीडिया का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप भी हमारे साथ जितना अरसा भी रहा, मीडिया ने भी बड़ा कोऑपरेट किया। और इसमें भी कोई शक नहीं कि डिस्ट्रिक्ट अटक वह ज़िला था जहाँ पर ईमान ताहिर साहिबा, हम अपोजिशन वालों को भी उन्होंने उसी तरीके से चलाया जिस तरह उन्होंने अपने जो इनके चेयरमैन हजरात थे। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ मैडम आपका कि आपने बड़े अच्छी नीयत और अच्छे दिल से इस हाल को चलाया। इस पर मैं आपको खराज तहसीन भी पेश करूँगा। मेरे भाई ने इधर से भी बात की और उधर से भी कि जी पीटीआई की हुकूमत जा रही है, और इन्होंने कहा कि आप आए तो हम आपके साथ भी देखें। नज़रिया हमेशा एक दफ़ा बनता है, अगर आप पीटीआई के लाइक करें तो आपको पीटीआई के साथ रहना चाहिए। हम मुस्लिम लीग के लाइक करें तो अपने जो धड़ा है, जो अपना जो नज़रिया होता है उस पर खड़े रहना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और रहा सवाल कि इस हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि जो जुल्म 71 साल की तारीख उठा कर देखें, जो जुल्म, जो ज़्यादती रेडी वाले से लेके कारोबारी हजरात तक इस हुकूमत ने की है, इसकी मिसाल इन 71 सालों में नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया। 2 साल से ये बंद दारा
हमारी मैडम की कोशिशों से बहाल हुआ है। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने हमारे लिए बहुत से काम किए, औरतों के मसले मसाइल खूब जानते हैं ये, उनको हल भी किया है। आइंदा भी हमारी गुजारिश है कि ये हल करेंगे। रह गए और ये हो गया, इसलिए काइंडली जो चेयरमैन रह गए से वो अपने मंसूबे जल्द से जल्द जमा करा लें। थैंक यू। नाज़रीन, कारी अतीकुर रहमान साहब की इख्तितामी दुआ के साथ ही ये इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है। इसकी आपको रिपोर्ट दिखाई है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।